یہاں آپ کو بتائیں 28 مئی کو NA 108 میں ضمنی الیکشن نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے PTI رہنما فاروق حبیب کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت 90 روز سے کم رہ چکی، قانونی طور پر ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ 28 مئی کو NA 108 میں ضمنی الیکشن نہیں ہوگا۔ 28 مئی کو NA 108 میں ضمنی الیکشن نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آباد اور ننکانہ صاحب کے حلقوں میں ضمنی انتخابات روکنے کی استدعا منظور۔ PTI رہنماؤں فاروق حبیب اور اعجاز شاہ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، سیکرٹری کیبنٹ اور قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دونوں حلقوں میں 28 مئی کو ضمنی الیکشن منعقد کیے جانے تھے۔ قومی اسمبلی کی مدت 90 روز سے کم رہ چکی، قانونی طور پر ان حلقوں میں ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی خیبر پختونخوا میں ہونے والے انتخابات کو ملتوی کر دیا، لہٰذا NA 108 اور 118 میں الیکشن روکنے کا حکم دیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے الیکشن روکنے کا حکم دے دیا۔ ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد علی انان قمر کے الائٹ مور آمد۔ سرگودا روڈ پر کیپٹن اسفندیار شہید کی یادگار پر شمع روشن کی۔ شمع روشن کرنے کی تقریب میں سول سوسائٹی کے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سرگودا روڈ پر اسفندیار شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمعیں روشن کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی انان قمر نے یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ہیرو ہیں۔ تقریب میں شہداء کے سلسلے میں ایسی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے آرمی کے جوان ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں، پولیس کے جوان ہیں، پولیس کے آفیسر جنہوں نے شہادت نوش فرمائی اور جنہوں نے اپنی جان کو قربانی دی ہے، ان کو یاد کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے فنکشنز رکھے ہیں، جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کینڈل لائٹ پروگرام ہم نے کیا کیپٹن اسفندیار شہید کے اس چوک کے اوپر۔ تقریب میں ADC جی سعید احمد منج، ADC ہیڈ کوارٹر کاشف رضا اوان، چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکول الائنس صداقت حسین لودھی سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ADC ہیڈ کوارٹر کاشف رضا اوان کا کہنا تھا کہ شمعیں روشن کرنے کا مقصد شہداء کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ صداقت حسین لودھی نے بھی شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس میں شہیدوں کا خون بھی شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایگزسٹنس، اگر ہماری ایگزسٹنس نہیں ہوگی تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تقاریب ثابت کرتی ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں محب وطن ہیں اور ہم اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، اس ارض پاک کے لیے جو بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ ہم نے حاصل کی ہے۔ اسفندیار شہید کی یادگار پر شمع روشن کرنے کے بعد ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ شمع روشن کرنے کا مقصد قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ شہداء اور ان کی یادگار کا احترام ہر پاکستانی کا فخر ہے۔ کیمرامین محمد معظم کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایات پر شہداء وطن کو خراج عقیدت پیش۔ TPO چنگ ملک طارق محبوب شہداء افواج اور پولیس کے گھر پہنچ گئے، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ DPO ملک طارق محبوب نے 1999 میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر نصرت سیال شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی، جبکہ 2014 میں شہید ہونے والے میجر یاسر اور 2019 میں شہادت کا درجہ پانے والے صوبیدار منور خان سیال کی اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں DPO ملک طارق محبوب نے 1999 میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر نصرت سیال شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی، جبکہ 2014 میں شہید ہونے والے میجر یاسر اور 2019 میں شہادت کا درجہ پانے والے صوبیدار منور خان سیال کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے خاندان ہمارے لیے سب سے زیادہ مکرم ہے۔ اور ناظرین، پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 6 جون سے 20 اگست تک ہوں گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے موسم گرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سٹی 41 بنا طلبہ کی آواز۔ سٹی 41 کی خبر پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو ملک تحسین ایوان کا ایکشن ہوا ہے۔ تمام امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے DCC کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سٹی 41 نے امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سٹی 41 بنا طلباء کی آواز۔ سٹی 41 کی خبر پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو کا ایکشن۔ تمام امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے احکامات جاری۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے DCC کو حکم نامہ جاری کر دیا۔
नाजरीन, यहाँ आपको एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर दें। सुई गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह तक जारी रखने का फैसला। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद कहते हैं कि एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए हुकूमत हमें 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी दे। एक्सपोर्टर्स को सस्ती गैस मजीद 2 माह मिलेगी। वजीर तवानाई की जानिब से महकमा सुई नोदरन गैस को 4 अरब रुपए मजीद जारी कर दिए गए। एक्सपोर्टर्स मई और जून में सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती इकदाम को सराहा है। बिजनेसमैन का ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए इसको 5-5 साल का मिनिमम मनसूबा दें ताकि लोगों को ट्रस्ट हो और लोग बिजनेस को एक्सपेंड करने के, बिजनेस शुरू करने के लोग उसके लिए तैयार हो सकें। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद कहते हैं गैस सब्सिडी की मुद्दत में इजाफा किया जाए। हुकूमत कारोबार में बेहतरी के लिए 5 साला मंसूबा दे। जो ईरान के साथ हमारी गैस का हुआ है उसको हमें फौरी तौर पे उसको करना चाहिए रीइंस्टेट, क्योंकि अब ईरान के साथ हमारा बिजनेस शुरू हो गया है। गैस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आने वाले वक्तों में चंद सालों के बाद गैस नहीं है। अगर ये सॉलिड बेसिस पे सारी चीज़ें करें तो फिर फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी एक रोशन उम्मीद है छोटी सी 2 माह की, लेकिन इसको इट शुड बी कंसिस्टेंट। एक्सपोर्टर्स कहते हैं हमें इंडस्ट्री के लिए हकीकी रिलीफ चाहिए ताकि बैनुल अक़वामी खरीदारों की तवज्जो हासिल की जा सके। सनतकारों ने गैस के साथ साथ बिजली पर भी सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत आमदन पर टैक्स वसूलियों में इजाफे की बजाय शहरियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का मजीद बोझ बढ़ाने लगी है। दूसरी जानिब टैक्स गुजारों ने आइंदा माली साल में सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत और FBR उमरा से टैक्स निकलवाने में नाकाम। आम आदमी पर सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान। सेल्स टैक्स इजाफा महंगाई में होश रुबा इजाफे का बाइस बनने लगा। फैसलाबादियों से रवा माली साल के 10.5 माह के दौरान 23 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूल किया गया। दरामदार पर 13 अरब जबकि मुकामी मसनूआत से 10 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूल हुआ। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में सेल्स टैक्स वसूली 20 अरब रुपए थी। दूसरी जानिब हुकूमत ने बजट में सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन वालों पर सुपर टैक्स जारी रखने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद के ताजर टैक्सों की भरमार से परेशान। कहते हैं जो हमारी आमदन तस्वर की जाती है वो 80% तो सरमाए का हिस्सा होता है। उनका कहना था कि सरमाया कारोबारी पहिया चलाए रखने के लिए दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नायब सदर FCCI असलम भल्ली ने कहा कि हुकूमत ऐसे टैक्सेस से परहेज करे और बजट में ताजरों को रिलीफ फराहम करे। और अगर हम 15 करोड़ कमाते हैं तो उसमें से कम 12-13 करोड़ रुपए जो है हम री इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है और हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पर जाता है। टैक्स गुजार कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां बंद कमरों में बनती हैं और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, जिससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान और साथ ही रिपोर्टर शराज भट्ट के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद गंदम खरीदारी मुहिम में सबसे पीछे महकमा खुराक फैसलाबाद 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम ना खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 58% रिकॉर्ड, तो दूसरी जानिब महकमा खुराक चिन्योट ने 100% गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया। 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 5,26,690 बोरी का हदफ था। फैसलाबाद गंदम खरीदारी मुहिम में सबसे पीछे। महकमा खुराक फैसलाबाद 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम न खरीद सका। महकमा खुराक फैसलाबाद ताहाल 6,76,000 बोरियां खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 58% रिकॉर्ड की गई। 11 गंदम खरीदारी मराकज में बारदाना खरीदारी का अमल जारी। दूसरी जानिब महकमा खुराक चिन्योट ने फैसलाबाद डिवीजन में 100% गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर असलम ने हदफ के हसूल में तमाम महकमों के ताउन का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि महकमा खुराक चिन्योट ने फैसलाबाद डिवीजन में सबसे पहले अपना हदफ हासिल किया है। 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 5,26,690 बोरी का हदफ था। तमाम सेंटर इंचार्ज और महकमा खुराक के मुलाजमीन ने गंदम खरीदारी मुहिम को कामयाब बनाया। लालिया में 3 लाख से ज्यादा गंदम की बोरी खरीद ली गई। फैसलाबाद डिवीजन में लालिया और जनाब नगर मराकज गंदम खरीदारी में सहरे फहरिस्त है। तहसील लालिया के दोनों खरीदारी मराकज लालिया और जनाब नगर ने 100% अहदाफ हासिल कर लिए। जनाब नगर सेंटर पर 1,60,000, लालिया सेंटर पर 1,40,000 गंदम की बोरियां खरीदी गई। गंदम की खरीदारी जारी तो इंतजामिया गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भी मैदान में मौजूद। समुद्री चक 482 में छापा। गंदम की 3,200 बोरियां बरामद। गंदम सरकारी तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि चंद रोज की कार्रवाइयों के दौरान जखीरा की गई गंदम की 9,200 बोरियां बरामद की गई है। ईद कुर्बा पर फैसलाबाद जिला में 10 मवेशी मंडियों के क़याम का फैसला कर लिया गया।
مویشی मंडी और ईद आयाम में अलाइशी ठिकाने लगाकर सफाई का निजाम बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने CEO वेस्ट मैनेजमेंट को अलाइशों को ठिकाने और सफाई का जामिया प्लांट मुरतब करने का हुक्म दे दिया। ईद कुर्बान पर जिला फैसलाबाद में 10 मवेशी मंडियों के कयाम का फैसला। 10 मवेशी मंडियों के कयाम का फैसला। न्यू मवाना समुद्री रोड, चंचल सिंह वाला झंग रोड पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। सतियाना रोड, ककवाना, जंडवाला, रेलवे ग्राउंड जड़ावाला पर भी मवेशी मंडी सजेगी। मकवाना बाईपास खुड़ियावाला, सब्जी मंडी समुद्री में भी मवेशी मंडी बनाने का फैसला कर लिया गया। सतियाना रोड तांतियावाला, बकर मंडी मामू कांजन, फैसलाबाद रोड झुमरा में भी मवेशी मंडी लगेगी। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल्ला अहमद, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत अवान ने शिरकत की। मवेशी मंडियों और ईद आयाम में अलाइशें ठिकाने लगाकर सफाई का निजाम बेहतर बनाने पर भी गौर। डिप्टी कमिश्नर ने CEO वेस्ट मैनेजमेंट को अलाइशों को उठाने और सफाई का जामिया प्लांट मुरतब करने का हुक्म दे दिया। इस मौका पर अली उनान कमर का कहना था, मुकर्रर करदा जगहों के अलावा कहीं मवेशी मंडी लगी तो मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा जाएगा। तरक्की किसान की खुशहाली। पाकिस्तान की महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड के ज़रिए तमाम चिन्योट की गल्ला मंडी में 3 रोज़ा किसान मेला सज गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। मेले में ज़राई अद्वियात और बीज फरोख्त करने वाली कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद। किसानों की जोक तरजोक आमद शुरू हो गई। मजीद जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। पेस्टिसाइड के जेर तमाम चिन्योट की गल्ला मंडी में 3 रोजा किसान मेला सज गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, सदर गल्ला मंडी और दीगर ओहदेदारान और किसान नुमाइंदगान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि मेले का मकसद किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर मेयारी अशिया मुहैया करना है। किसानों को मिलावट से पाक मेयारी बीज और ज़राई अद्वियात 10 से 15% रियायती कीमत पर दी जाएंगी। किसान भाई इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम किसान भाइयों से, आए इस विंडो से, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक छत तले ना सिर्फ आपको ब्रांडेड यानी कि कंपनी की सर्टिफाइड अद्वियात और बीज मुयसर होंगे, बल्कि एक रीज़नेबल डिस्काउंट जो है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सारी अद्वियात और बीज मुयसर हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसानों से कहा कि बेहतर बीज और अद्वियात के इस्तेमाल से फसलों से भरपूर पैदावार हासिल होगी, जिससे ज्यादा नफा हासिल किया जा सकेगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। और नाजरीन, एक बार चार्जिंग और फिर 100 किलोमीटर तक का लंबा सफर। फैसलाबाद में रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुतारफ करवा दी गई। मजीद देखिए मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अब शहरियों की जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी। एक बार चार्जिंग और फिर 100 किलोमीटर तक का लंबा सफर। फैसलाबाद रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुतारिफ करवा दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर अबू बकर डोगर कहते हैं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेंटेनेंस फ्री है। ये पाकिस्तान की फर्स्टली मेड जो है हाइब्रिड बाइक है। इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोमीटर्स तक है। 2 जो यूनिट आपके इलेक्ट्रिसिटी के वो कंजप्शन है, 100 किलोमीटर जो माइलेज है। प्लस हमने इसमें जो है हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करवाया है विद इंजन। इंजन की फैसिलिटी इसलिए दी गई है, यूजुअली हमारे यूज़र्स की प्रॉब्लम रही है कि अगर हम इसे 100 माइलेज से ऊपर लेके जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। जो इंजन होगा इट विल वर्क एज ए फ्यूल, और साथ इसके अंदर हमने एक जनरेटर जो है वो इंस्टॉल किया गया। टेक्निकल इंजीनियर महरोज पाशा कहते हैं कि 2 घंटे चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जबकि चार्जिंग खत्म होने की सूरत में पेट्रोल डलवाने की सहूलत मौजूद है। हाइब्रिड बाइक इस्तेमाल करने से शहरियों के पेट्रोल के अखराजात खत्म हो जाएंगे। और एक हाइब्रिड बाइक बनाई है जिसके अंदर आपके पास कन्वेंशनल बाइक की तरह इंजन की सहूलत भी मौजूद है और बैटरी की सहूलत भी मौजूद है। आप अगर उसको बैटरी उसकी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है, आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर ली है और अब आप उसको पेट्रोल डाल के उसको फर्दर आप आगे जा सकते हैं, जितनी मर्जी लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। हालिया दिनों में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से CEO रोड किंग वलीद डोगर से मुलाकात की और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक मुतारफ करवाने पर सराहा। उन्होंने मुलाकात में हुकूमती ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक जो चार्ज हो एक दफा और चले 100 किलोमीटर, यानी कि पेट्रोलिंग मसनूआत से अब जान छूट जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। PCB का खिलाड़ियों के लिए अहम इक़दाम, देखिए रिपोर्ट।
ریجنل انٹر ڈسٹرکٹ سینئر کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے ماہر سپورٹس کمپلیکس جنگ میں کھلاڑیوں کے ٹرائل لیے گئے. اس موقع پر پی سی بی کے کوچز شاہی یوسف اور مجاہد مقبول ٹرائل لینے جنگ پہنچے. کھلاڑیوں کے ٹرائل صدر ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن جنگ رانا زاہد کی جانب سے کروائے گئے, جس میں کھلاڑیوں نے خوب حصہ لیا. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 300 کے راؤنڈ اباؤٹ پلیئرز ہیں جنہوں نے ٹرائلز دی ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی پلیئرز آئیں گے میرٹ کے اوپر تو ان کی ہم ٹیم بنائیں گے, 4 ٹیمیں ان کی بنیں گی, ان کے ٹرائل میچز ہوں گے, پھر اینڈ پہ جا کے سینئر ڈسٹرکٹ کی ایک ٹیم بنے. صدر ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن جنگ رانا زاہد کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کھلاڑیوں کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے. ٹرائل دینے کے لیے جنگ توبہ اور چنیوٹ کے کھلاڑی آئے ہیں. قصور, فیصل آباد, سرگودا اور میاں والی کے اگینسٹ کھیلے گی. اس میں سے جو اچھا پرفارم کریں گے وہ ڈائریکٹ فیصل آباد ریجن کی طرف سے فرسٹ کلاس کھیلنے کے امیدوار ہو جائیں گے. تو یہ زبردست سٹیپ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. پچھلے 4 سال سے ہم لیگ کر رہے تھے, آپ دیکھیں کہ کتنی رونق لگی ہوئی ہے. کھلاڑیوں نے ٹرائلز کے دوران اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا. کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز, CT41 جنگ. خبریں آپ نے جانی, اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.